आए तो अनाउंस करने के लिए थे, बट वी आर होल्डिंग इट, विल कम बैक टू इट, विल कम बैक टू क्या कोर्सेज हैं, क्या फीस है, कितना यहाँ पढ़ना है, कितना बर्मिंघम जाना है, बट रेस्ट एश्योर्ड जो हम क्लाइमेट देंगे वो इंटरनेशनल एक्सपोजर के आप और उनको नए सिलसिले से जीरो पढ़ाने पड़ता है ना, वो बेचारे घर रहते हैं, वो हाँ practical ना, एकेडमिक भी जो एकेडमिक का स्टैंडर्ड हो गया है, तो हम तो अपनी रिक्वायरमेंट को, हमारी तो खुद भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट है, देख करके कि ये जो लड़का निकले और हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ये कह सके कि भाई मिस्टर राय, दिस इज द पास आउट फ्रॉम हियर दैट वी गॉट। वो कितना सक्सेस होगा नहीं होगा, डॉक्टर जूलियन बियर विल बी देयर। हमारा तो काम एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना, हमारा काम इन्वेस्टमेंट करना, हमारा काम ये है कि बगैर किसी लोभ मोह या लालच की एजुकेशन को आगे बढ़ाना है इस शहर का, और इस शहर को एक बार फिर से वाइब्रेंट बनाना है। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ खास मुलाकात प्रोग्राम में। सो आज हम खड़े हैं लुधियाना के BCM स्कूल के अंदर एक नई शुरुआत जो होने जा रही है BCM मुंजाल परिवार की तरफ से, जिसका नाम रखा गया है MBCIE। सो आज यहाँ पे हम खड़े हैं मिस्टर राय के साथ, और भी बहुत सारे हमारे साथ मेहमान हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या है ये MBCIE। सर नमस्कार। मेरे साथ बहुत सारे मेहमान नहीं खड़े हैं, ये प्रोफेसर जूलियन बियर है, डिप्टी वाइस चांसलर, और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के डिप्टी वाइस चांसलर हैं, और ये सारा मुंजाल M है, मुंजाल BC जो आप देख रहे हैं MBCI, BC इज़ फॉर बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज। इसके जनक, द मैन हु हैज़ दिस इन माइंड इज प्रोफेसर जूलियन बियर। प्लीज़ वेलकम हिम फर्स्ट। Sir, how are you, sir? I'm very well, thank you very We much. welcome you in India. Thank you very much. So what you want to say for Indian students and the Indian parents who wants to study abroad in Bremerton, and especially now you are at their doorstep. Although we're on the doorstep, Slowly, so that they can understand. although we're on the doorstep, we will have that linkage into Birmingham. So we have a sister centre sitting in Birmingham, or a brother if you like. So there will be that interchange between both the entrepreneurs that run through our programs and do the business startups, but also those taking our education programs. We're in the process of scoping that out now. So there will be that chance for those in Birmingham, I hope, to come to the Punjab, and those in the Punjab to come to Birmingham. So there'll be a mix of courses. And as my Professor Plowden said earlier, my Vice-Chancellor, it's very much about that internationalisation. And we have partnerships elsewhere in the world. We partner with over 100 different nationalities, and they will be in the mix as well. And we have a campus in Dubai, Ras Al Khaimah. So there are opportunities for that international experience as well as studying in the Punjab. But our belief is, if we can offer a world-class experience which is unique here in the Punjab, children won't want to go away. They'll start their own businesses, form their own companies here, and be the next generation of entrepreneurs, and work in companies like Hero and others on the doorstep of Ludhiana and the Punjab. It's about trying to stop that brain drain, as well as giving individuals the chance to see the rest of the globe and then come back, I hope, here to the Punjab. Very excited about this partnership and relationship, and we think it's going to be extremely successful going into the future. Is it the first collaboration in India? We've got a number of collaborations in research. We've got health down in Kerala, for instance, where we're looking at diabetes research and working with nursing provision. And then we have other research opportunities and collaborative partnerships with, I would say, 30 odd organisations in India. So I've made many trips to India. It's a great country, full of entrepreneurial spirit and full of those that want to better themselves. And education gives people that opportunity. So how you found the Munjal family? And I found the Munjal family as an absolute delight. Very hard because they're commercial, they're industry and business people. And Mr. Sunil Munjal has been, as I say, really driving this very, very hard.
It started from a discussion that we had, and I've got my friends here, Dr. Prem and Mr. Rai, who keep me on my toes because I'm an academic, so I might go a little slower than these gentlemen, but they bring me back up to pace. It's a pleasure. Sir, as Mr. Rai said, you are an educationist and most respected educationist of the world. So in India, how do you take this opportunity as a business or as a, because in India we take education as a temple of God. So Yes. how do you take in this opportunity in India? It's a massive opportunity. I see this as a first step with our partners. So we look at this centre, which includes our Steam House project, as I say, which we have in Birmingham, as the first footstep in India, really, in a serious partnership with a commercial partner, with industry. But I hope, once this model has been proven, we can operate and open centres all over India. And that's the ambition, because then I can connect more people in the UK to the opportunities in India and vice versa, more in India to opportunities in the UK. It's all about driving people's ambitions, realising those ambitions, and driving the economy at the same time. राय साहब, जैसे सर ने बता दिया, मुंजाल परिवार हमेशा से एजुकेशन को एज ए सेवा, एज ए सर्विस लेके चला है. मंदिर बोला जाता है, शिक्षा का मंदिर बोला जाता है स्कूल्स को. सो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? मैं जो आपने एक पहला सवाल किया कि एजुकेशन का जो बेसिक कंसेप्ट था कि जॉब ऑफर करे, वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो गया है. अब आज की एजुकेशन का ओरिएंटेशन ये होना चाहिए कि आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इंटरप्रेन्योर हो, नई चीज़ें कर सके, स्टार्टअप कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो. तो दिस यूनिवर्सिटी हैज़ द हाईएस्ट ट्रैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी. तो हम कन्वेंशनल एजुकेशन लाने का कोई इरादा नहीं रखते हैं. दिस इज़ व्हाट मैं कह रहा था कि ये स्टीम बेस्ड एजुकेशन होगी, जिसमें आपको हर एक चीज़ का ज्ञान हो, साइंस का ज्ञान हो, टेक्नोलॉजी ज्ञान हो, आपको आर्ट्स का भी थोड़ा सा पता चले, आपको इंजीनियरिंग का भी पता चले, मैथ्स का भी पता चले. ये सारी चीज़ें मिलके इंटीग्रेटेड ही होकर के करती हैं. तो ये हमारा जो सिलेबस है, कन्वेंशनल एजुकेशन से कम्पीट करने का कोई इरादा नहीं. और जो हमारे खुद के बच्चे हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जगाने के लिए उस लेवल पे हम टिंकरिंग लैब इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री हो रही. और बहुत सारे बच्चे वहाँ से आएंगे, बहुत सारे बच्चे बाहर से आएंगे. So this is post graduate course? It will be undergraduate, postgraduate. पोस्ट ग्रेजुएट. सो कब से एक बच्चा कौन सी क्लास के बाद इसको ज्वाइन कर सकता है? थोड़ा सा असमंजस ये हो गया कि गवर्नमेंट ने अभी हाल में ही नई एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस करी है, तो उसका हम फिटमेंट देख रहे हैं. आए तो अनाउंस करने के लिए थे, बट वी आर होल्डिंग इट. विल कम बैक टू इट. विल कम बैक टू क्या कोर्सेज हैं, क्या फीस है, कितना यहाँ पढ़ना है, कितना बर्मिंघम जाना है. बट रेस्ट एश्योर्ड जो हम क्लाइमेट देंगे वो इंटरनेशनल एक्सपोजर की. सर, आप जैसे बहुत बड़े एक कारोबारी भी हैं, मतलब एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लीड करते हैं, हीरो समूह और हीरो पूरा मुंजाल शोफा जो भी हैं, पूरे ग्रुप ऑफ हीरो, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़. सो एज ए आप लोग कैसे एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर, और खुद सुनील कांत मुंजाल जी भी लगे हुए हैं, सो कैसे देखते हो कि इसमें पढ़ने के बाद एक बच्चा इंडस्ट्री के लिए किस तरह का प्रोडक्ट बन के निकलेगा? मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हम समझते हैं कि आज के जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स आते हैं वो इंडस्ट्री को सूट नहीं कर रहे. और उनको नए सिलसिले से जीरो पढ़ाने पड़ता है, ना वो बेचारे उधर रहते हैं, वो हाँ अपना एकेडमिक भी जो एकेडमिक का स्टैंडर्ड हो गया है. तो हम तो अपनी रिक्वायरमेंट को, हमारी तो खुद भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट है, देख करके कि ये जो लड़का निकले और हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कह सके कि भाई मिस्टर राय, दिस इज़ द पास आउट फ्रॉम हियर दैट वी वांट. वो कितना सक्सेस होगा नहीं होगा, डॉक्टर जूलियन बियर विल बी देयर. हमारा तो काम है इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना, हमारा काम है इन्वेस्टमेंट करना. हमारा काम ये है कि बगैर किसी लोभ, मोह या लालच के एजुकेशन को आगे बढ़ाना इस शहर का, और इस शहर को एक बार फिर से वाइब्रेंट बनाने की बात. Sir, your good name? My name is Dr. Prem Kumar. I am part of Mr. Rai's team, and I have worked very closely with Julian and Mr. Rai. So what do you experience? Working on the project. So मेरा experience ये है कि जो current education है वो जो 21st century की requirement है उसके suitable नहीं है. बिल्कुल ठीक. तो ये project जो है वो उसको 21st century के close ले जाएगा कि एक बच्चा
एक तो खुली एजुकेशन, बाउंड्री लेस, जैसे आप कहो जी न्यूरो साइंस भी पढ़नी है और कंप्यूटर साइंस भी पढ़नी है, तो उस तरह से हम कर सकते हैं। तो बड़ी अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी हैं, जो आप करना चाहते हैं वो करते हैं, नंबर 1। सेकंड, इसका कंपोनेंट है कि आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे ट्रेनिंग स्पेशल मिलेगी। तीसरा कंपोनेंट है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी कि आप चाहे आप किसी की कंपनी में या अपने बिजनेस में भी वो स्किल यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा यूनिक मॉडल है जो अभी प्रैक्टिस नहीं किया गया है पंजाब में, और मेरा ख्याल पंजाब का तो यही फ्यूचर है। आई थिंक दिस दी वे। एक आखिरी क्वेश्चन राय साहब, मैं जितनी बात आप सबकी समझ पाया हूँ उससे मुझे ये लगता है कि इस तरह के कोर्सेज और इस तरह की एजुकेशन लुधियाना में और पंजाब में मिलने के बाद, मैं वही कह रहा हूँ, लुधियाना में और पंजाब में मिलने के बाद बहुत सारे पंजाबी बच्चे जो फ़ॉरेन जाने का ख्वाब रखते थे लेकिन जा नहीं पाते थे, कहीं ना कहीं मनी रिसोर्सेज, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, तो वो यहीं बैठे इंटरनेशनल स्टडीज़ का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं और अपने आप को उस कैपेबिलिटी पे देख सकते हैं उस कंपटीशन के मुकाबले। आप कह सकते हैं, लेकिन हमारा एम उनको वो नहीं है, हमारा एम ये है कि उनको सक्षम बनाना। सर बहुत सारा इंडियन रुपीज़ भी तो बचेगा ना जो हम फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी भारी सेविंग है, लेकिन हम उसको नहीं मार्केट कर रहे हैं। हम ये मार्केट कर रहे हैं कि मैं आपको, बेनिफिट तो है ही है ना जी। वो क्यों नहीं है, बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है वो। थैंक यू सर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रिशिएट करता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे राय साहब और बहुत सारे जो ब्रिमिंगटन यूनिवर्सिटी से आए हुए जो हमारे लोग थे, जो उन्होंने बताया कि जैसे प्रोफेसर्स थे बहुत बड़े बड़े, सो इनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा नया वेंचर शुरू किया जा रहा है यहाँ पे BCM स्कूल चंडीगढ़ रोड सेक्टर 32 में, जो कि कहा जा रहा है कि 21वीं सदी की जो ज़रूरत के अनुसार से एक नया एजुकेशन है, जो ज़रूरत है उसको पूरी करेगा। सो जो बच्चे यहाँ पे, जो यूथ यहाँ पे पढ़ेगा, वो फ्यूचर इंडिया के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप कर सकता है, विजुलाइज कर सकता है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के साथ आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।